Assalamu alaikum students, how are you all? I'm Arif sir. I hope all of you will be fine by the grace of Almighty. So here we go in the lecture number second. The Dreamcatcher is an extract taken from the novel The BFG, which was published in 1982. So this Dreamcatcher, the lesson that we are reading here, it is actually an extract. It is actually an passage. Extract means it is actually a passage that has been taken from the novel whose name is The BFG. Okay, actually The BFG एक नॉवल है. ओके, जिससे ये पैसेज लिया गया है. कौन? द ड्रीम कैचर. ये पूरा यानी कि इन शॉर्ट आई विल टेल यू दैट दिस होल लेसन द ड्रीम कैचर, ओके, this has been taken from a novel whose name is the BFG, okay, which was published in 1982. Roald Dahl penned down the idea of the story in one of his exercise books. Okay, so Roald Dahl actually penned down means write down, or I can say here wrote down. Okay, उसने लिखा क्या? इस स्टोरी का आइडिया उसकी अपनी एक एक्सरसाइज बुक में. He used to tell the story of the BFG to his kids and even used to pretend to blow happy dreams using a bamboo can. So what this Roald Dahl used to do, he used to use a bamboo can. Bamboo can पता होता है आपको बेटा? अगर हम एक पाइप लेंगे ना, लोहे की पाइप जिसमें अंदर से सुराख होता है. ओके, एक एंड से, फॉर एग्जांपल इफ आई शो यू दिस bamboo can is like this. Okay, it is like this. Okay, for example इसका यहाँ से होल होता है, यहाँ से भी होल होता है. ओके, सो यहाँ से ये लेता हुआ था और यहाँ से ड्रीम्स ब्लो करता था, राइट? ओके, BFG he used to tell the story to the of the BFG to his kids and even used to pretend to blow happy dreams using the bamboo can. Okay, so what Roald Dahl used to do, he used to tell these dreamy stories to his kids. अपने बच्चों को ये जो ख्वाबी कहानियाँ होती हैं वो बोला करते थे. क्या से? ये ऐसे जैसे कि मैंने दिखाया एक पाइप के ज़रिए. बम्बू जो होता है, ओके, घने का कैन, तो उसका जो सुराख होता है एक एंड से खुला होता है, वहाँ से अपना मुंह लगा के दूसरा एंड अपने किसी कीड़ के कान में लगा के वो वहाँ पे उनको क्या कहता था, वो स्टोरीज किसकी? ड्रीम्स की. द BFG इज अ स्टोरी अबाउट अ गेंट who hunts and captures dreams in a bottle. Okay, so what is this BFG? Basically this BFG is nothing but it is a story about a Gaint means a ghost who is of a huge size, who hunts and captures dreams in a bottle. Okay, who hunts जो शिकार करता है, and captures और पकड़ता है कि उनको ड्रीम्स को किसमें? बॉटल में रखता है. किनको? ड्रीम्स को. He blows these dreams into children's ears while they are asleep. and then फिर क्या करता है वो काम? जब इन ख्वाबों को पकड़ता है, बोतल में डालता है, फिर वो इन ख्वाबों को ब्लो करता है किसमें? these dreams किसमें? बच्चों के कानों में ब्लो करता है. Okay, the BFG speaks in a Gobelfunk language that includes words like Aki Maki, Messy and Delicious. Okay, so ये जो ये BFG है, he speaks in a Gobelfunk language. Okay beta, so Gobelfunk, I want to tell you that Gobelfunk language, it's actually I write it for you, Gobelfunk language. Okay, Gobelfunk language. बेसिकली Gobelfunk लैंग्वेज क्या होते हैं? दीज आर द मेड अप वर्ड्स. क्या होते हैं बेटा? इसका मतलब है मेड अप वर्ड्स, राइट? सो ये मेड अप वर्ड्स है, मीन्स कि एक्चुअली अगर आप देखेंगे कहीं पे ये वर्ड्स आपको नहीं मिलेंगे कहीं पे भी, बिकॉज दीज आर नॉट द एक्चुअल वर्ड्स. तो फिर ये मेड अप वर्ड्स का मतलब क्या है? मेड अप मीन्स जो खुद ही हम बनाते हैं, जो कि इस राइटर ने खुद ही बनाए थे, राइट? फॉर एग्जाम्पल जैसा कि आपको मैंने अभी कहा अकी मकी. व्हाट इज अकी मकी? इसका कोई माने ही नहीं है. देयर इज नथिंग, no meaning hidden is Aki Maki. Okay, so this is the Gobelfunk language that the Roald Dahl used to use, okay, in his stories. So this Aki Maki, this is a example of the Gobelfunk language. Okay, सो दिस अब ये मैं बताऊंगा कि Gobelfunk लैंग्वेज यूज़ क्यों करता था. ये इसलिए यूज़ करता था बिकॉज इफ़ द स्टोरीज वर टू लॉन्ग, अगर रोल्ड डहल, इसके राइटर जो है रोल्ड डहल, अगर वो ये उसको ख्याल आए कि मेरी जो स्टोरी है बहुत ज़्यादा बड़ी है और इसको पढ़ते पढ़ते जो मेरा रीडर है, बच्चे जो है ख़ासतौर पे, वो बोर हो जाएंगे, तो उनको थोड़ा लॉटर अराउज करने के लिए
थोड़ा हंसी मजाक करने के लिए वो ये लैंग्वेज यूज करता था। कौन सी? गोबल फंक लैंग्वेज। सो बेटा समझ में आया व्हाट इज गोबल फंक लैंग्वेज? गोबल फंक लैंग्वेज इज नथिंग, दीज आर द मेड अप वर्ड्स जो कि उसने खुद बनाए थे, लाइक अक्की मक्की, जिनका कोई माने तो नहीं होता है, बल्कि जस्ट टू arouse laughter among his readers. Okay. He meets Sophie. ये मिलता है सोफी से, जो कि एक ऑफन होती है, या ऑफन मीन्स अ पर्सन whose parents are dead, and saves her from 9 other fearsome gents who eat human beings, or rather human beings, as the BFG would have called them rather. Okay, so what happens? This he meets whom he meets Sophie. ओके, ये सोफ़ी से मिलता है, जो कि एक ऑर्फन होती है। सोफ़ी के माँ बाप मरे हुए होते हैं और उसको बचाता है दूसरे, ही सेव्स हर फ्रॉम 9 अदर फियरसम गेंट्स। ओके, उसको बचाता है 9 फियरसम गेंट्स से। फियरसम मीन्स बहुत ज़्यादा डरावना, गेंट एज आई ऑलरेडी स्टेटेड। ओके, अ बिग घोस्ट हु विद अ ह्यूज साइज, ओके, हु यूज्ड ह्यूमन बींग्स और रादर ह्यूमन बींग्स एज द BFG वुड हैव कॉल्ड देम। तो बेटा इसका माना ये है कि who used to eat human beings। तो ये बचाता है इस सोफी को किन से? 9 फियरसम गेंट से, जो कि थे कौन? ह्यूमन बी, जो कि थे ह्यूमन बींग्स, से ह्यूमन बींग्स को खाता था। तो और रादर देन ह्यूमन बींग्स एज BFG वुड हैव कॉल्ड दैम। अच्छा, बल्कि ह्यूमन बींग, अच्छा ये क्या, ये जो ये रोल्ड डैल है ये बोलता था ह्यूमन बींग्स को क्या? ह्यूमन बींग्स। ओके, ह्यूमन बींग्स इट्स नथिंग बट ये मेड अप वर्ड है जो कि रोल्ड डैल ने बनाया है, जस्ट टू अरोज लॉटर अमंग हिज रीडर्स, अमंग द स्टूडेंट्स। यानी कि वो खाता था किन को? अकॉर्डिंग टू रोल्ड डैल वो खाता था ह्यूमन बींग्स को। ये ह्यूमन बींग्स का मतलब है यहाँ पे क्या? ह्यूमन बींग्स। ओके, सो बेटा you got it clear that this is about the Grimm creature is basically about a story in which the author he saves the Sophie from the 9 fearsome gates, okay, who used to eat human beings. And also you should keep this thing in mind that जो गोबल फंक लैंग्वेज है वो कोई ना कोई, मतलब जो भी बेटा ये क्यों होता है ऐसा कि मतलब कहीं पे आप देखते हैं, if you might have seen in the previous classes we read about similes, okay, you might have seen simile, okay, you might have seen metaphor, okay, okay, you might have seen the alliteration, okay, you might have seen alliteration, right? Okay, so all these things are science fiction, what we read previously, science fiction. So all these things, okay, all these techniques ये क्यों यूज करता है कोई भी राइटर? ताकि उसका जो राइटिंग है, चाहे स्टोरी है, चाहे पोइम है, चाहे कोई भी प्रोज का कोई भी पीस है, उसको खूबसूरत और अट्रैक्टिव और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए सारी चीजें एक ऑथर अपने एक्सट्रैक्ट में डालता है। दैट्स वाई here this is one of the beauty of this author रोल्ड डहल की एक खूबी है कि इसने अपने बड़ी बड़ी स्टोरीज में ऐसे गोबल फंक लैंग्वेज यूज़ किए हैं, एज ए मेड अप वर्ड्स यूज़ किए हैं, जैसे कि अगेन आई रिपीट, जिस तरह से ह्यूमन बींग्स को खाता था, तो यहाँ पे लिखता है रोल्ड डहल उसका नाम ह्यूमन बींग्स, when they are human beings, not human beings, बल्कि वो है human beings. So in order to make his extract, in order to make his story attractive and interesting one, the global funk language is used by Roald Dahl. Okay.